मान लो एक पर्टिकुलर डोज दिया आपने, इट इज प्रोड्यूसिंग ब्रोंकोडाइलेटेशन। अभी मैं और डिटेल डोज नहीं बताऊंगी, एजम्पटिव वे में अब मैं बताऊंगी। 1 मिलीग्राम आपने डोज लिया आइसोप्रिनालिन का, ब्रोंकोडाइलेटेशन हुआ। आपने 2 मिलीग्राम डोज लिया तो कार्डियक स्टिमुलेशन हुआ। बट विद साल्ब्यूटामोल आपने 1 मिलीग्राम लिया, ब्रोंकोडाइलेटेशन हुआ। आपने 2 मिलीग्राम साल्ब्यूटामोल लिया, ओनली ब्रोंकोडाइलेटेशन हुआ। बट आपने 5 मिलीग्राम साल्ब्यूटामोल लिया तो कार्डियक स्टिमुलेशन हुआ। So can you see the difference? Isoprenaline, while increase in the subsequent dose, immediately it is producing cardiac stimulation. है ना? So it is a non-selective beta adrenergic drug. वो at the same time bronchodilation भी करेगा और cardiac stimulation भी करेगा. Whereas salbutamol is a selective bronchodilator, मतलब selective beta 2 agonist. So it is producing only bronchodilation. But if you give very high dose of salbutamol, selectivity will be lost. Instead of beta 2, वो beta 1 पे भी action करना चालू कर देगा. But that is in the high dose. Okay. Both. So here the difference is difference in the dose. Very small rise in dose of isoprenaline will lead to cardiac stimulation, and very large dose difference is there for getting cardiac stimulation. Our main core purpose is to have a bronchodilation. Bronchial asthma में आपको use करना है, तो आप कौन सा drug prefer करोगे? Anyone can write in the chat or can speak. Which drug will we prefer for bronchodilation? Isoprenaline or salbutamol? Yes. Yes, very good. Yes. So why? Because with small increase in the dose, it is non-selective one, isoprenaline. वो cardiac stimulation करेगा. That we do not want. What we want is bronchodilation. And salbutamol is very selective at low dose. है ना? हम थोड़ा डोज बढ़ाएंगे तो भी वो सेफर है. हम आगे और ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. Okay, so thank you everyone. This is the concept of drug selectivity. So whether beta 1 selectivity or isoprenaline is acting on beta 1 as well as beta 2, right? But remember, for most of the drugs, अगर higher dose देंगे तो वो selectivity diffuse हो जाएगा, right? So this is the concept of drug specificity and drug selectivity. Now we move on to the drug response curve. यहाँ पे जब भी हम स्टडी करते हैं तो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं, राइट? डोज भी लेते हैं या फिर प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, राइट? सो आपको ऑन एक्स एक्सिस जब भी मिलेगा या कॉन्सेंट्रेशन होगा या डोज होगा, एंड ऑन वाई एक्सिस यू विल हैव द रिस्पॉन्स और द इफेक्ट. ओके, अभी डोज रिस्पॉन्स कर्व. सी, मान लो कि आपने एक ड्रग लिया, you want to observe, like salbutamol लिया आपने, you want to observe the bronchodilation, है ना? So bronchial smooth muscle relaxation, तो हमको इफेक्ट देखना है ना? तो आपने यही salbutamol को डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में दिया और वो कितने तक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, that we have plotted, हमने ग्राफ में लिया उसको. So you will see for most of the drugs, responses to low doses of a drug usually increase in direct proportion to the dose. For most of the drugs, it is true. But if you increase the dose, it reaches to a point at which no further increase in the response you will get. So that is Emax. So Emax means
maximum response, that is written in the red one, maximum response that can be produced by the drug. उससे ज्यादा और नहीं आएगा. अभी आप रिसेप्टर कॉन्सेप्ट भी इसमें अप्लाई कर सकते हो. जो मैं रिस्पॉन्स जो भी है, जितने भी रिसेप्टर में बाउंड करना था वो ड्रग ने बाइंड कर लिया. इसके अलावा और नहीं बाइंड हो सकता, उससे ज्यादा और इफेक्ट नहीं आएगी, चाहे वो कितने भी और रिसेप्टर पे बाइंड कर ले. दिस इज द मैक्सिमम रिस्पॉन्स, राइट. बट दूसरा एक भी है EC50. EC50 means concentration of drug that produce 50% of maximum effect. यूजुअली क्या होता है, जब भी ग्राफ में प्लॉट होता जाता है ड्रग ट्रायल्स में और इसमें, सो वी हैव टू सी विच वन इज बेटर. सो फॉर द कंपैरिजन EC50 हम लेते हैं, इसीलिए हम पढ़ते हैं, राइट. सो दिस इज द टू टर्मिनोलॉजी, Emax and EC50. That is maximum response that can be produced by the drug, and EC50 means concentration of drug that produce 50% of the maximum effect, right? So first we'll talk about graded dose response curve. जैसे कि मैंने अगले ग्राफ में दिखाया वही है, सेम maximum response, percentage of maximum response, and A means drug concentration or plasma concentration. Okay, here what we have seen is the dose response curve in the first graph, A graph. The size of the response in relation to dose of the drug. आपने 0 डोज दिया, रिस्पॉन्स नहीं आया, थोड़ा डोज दिया, रिस्पॉन्स आया, और ऐसे समय आएगा जहां पे वो मैक्सिमम इफेक्ट 100%, नियर 100%, उससे ज्यादा अचीव नहीं करेगा, चाहे कितना भी डोज बढ़ा लो, राइट. So this is actually the relation of the response to the dose of the drug in a single biological unit. एक सब्जेक्ट है, या तो फिर कोई एक ऑर्गन पे किया गया है, या कोई एक टिश्यू पे किया गया है. फिजियोलॉजी में पढ़े थे ना, हार्ट में हम इफेक्ट मतलब आइसोलेटेड टिश्यू लेके हार्ट ऑर्गन लेते हैं, या आइसोलेटेड टिश्यू लाइक गिनी पिग इलियम लेते हैं, या कोई एक होल सब्जेक्ट लेते हैं जिसमें ब्लड प्रेशर या ऐसे कुछ देखा जाता है ना. सो इट इज अ सिंगल बायोलॉजिकल यूनिट. कोई एक पर्सन कोई एक सब्जेक्ट में है, कोई एक ऑर्गन में है, या कोई एक टिश्यू में है. रिमेम्बर, वही मेजर कर सकते हैं ना, यही दिखाया गया है यहाँ पे. In the second graph, can you see the difference? This is the logarithm. है ना, we have converted dose in the log. I think 8th, 9th, 10th में हमने logarithm पढ़ा था. The importance of converting the simple dose in the logarithm, there are too many advantages. Because जब भी नया ड्रग ढूंढा जाता है, we are taking too many responses, है ना, too many responses with the too many small doses. वो एक ग्राफ में प्लॉट नहीं होगा. लॉगरिथम है ना, log 10 कितना होता है? 1. आप अभी भूल गए होंगे. सो ये बहुत बड़ा ग्राफ है, उसको लॉगरिथम में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो वो छोटे में एक ग्राफ में इंक्लूड हो जाएगा. ओके, बट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, कैन यू सी द चेंज इन द शेप, है ना. हाइपरबोला से क्या हुआ, सिग्मोइड का हो गया. एंड यहाँ पे ऐसा बोला जाता है 30 to 70% जो लाइन है, 30 to 70% रिस्पॉन्स, वो स्ट्रेट लाइन आ जाती है ना. सो इट इज इजी फॉर कंपेरिजन विथ अदर ड्रग्स, कंपेरिजन विथ अदर्स, राइट. एंड इजी टू कैलकुलेट EC50. अभी और डिटेल नहीं जाएंगे हम, क्योंकि EC50 कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस होते हैं. विल नॉट गो इन द डिस्कशन, बट सिंपली आप याद रखो कि वी आर टेकिंग द डोज रिस्पॉन्स कर्व मोस्टली इन
logarithm. So we are taking log dose response curve most of the time. So जब भी आप pharmacodynamics के ग्राफ देखोगे तो dose and response आएंगे, and वो भी logarithm में. So ये sigmoid shape कर्व होता है, that is easy for comparison also. And large doses you can include in one graph, that is also easy for comparison, right? And easy to see. देखो यहाँ पे भी maximum effect, यहाँ पे EC50, right? कंपैरिजन में बहुत इजी होता है. ये सिंगल यूनिट है, इसीलिए अगर दूसरे सब्जेक्ट में भी कंपेयर करना है या दूसरे ड्रग के साथ कंपेयर करना है तो देखो ऐसे आएगा. सो ऊपर देखो, the above one graph, both are showing effect and the x-axis log concentration of agonist, है ना. कोई एक ड्रग लिया है, मान लो ड्रग एक्स एंड ड्रग वाई. जस्ट कंपेयर द अबव एंड ए ग्राफ एंड बी ग्राफ, है ना. ये ड्रग एक्स है, ये ड्रग वाई है. क्या डिफरेंस है? देयर इज अगेन टर्मिनोलॉजी. देखो दोनों में रिस्पॉन्स है ना. दोनों में डोज दिए हुए, डिफरेंट डोजेस, but we have compared the drugs. So drug X and drug Y. At the above one A graph, we have compared potency. And in the below graph, we have compared the efficacy. What is potency? Potency is the quantity of a drug that is required to produce a desired response. It is the quantity of drug that is required to produce a desired response. मानो कि आपको 40% रिस्पॉन्स चाहिए, 40% इफेक्ट चाहिए, तो आपने एक्स ड्रग में कितना रिस्पॉन्स, कितना डोज, इतने डोज में 40% रिस्पॉन्स आया, है ना. ये आर्बिटरी देखो. लेकिन वाई ड्रग के लिए क्या है, 40% रिस्पॉन्स के लिए आपको बहुत ज्यादा डोज देना पड़ेगा, राइट. तब जाके 40% रिस्पॉन्स आएगा. 20% रिस्पॉन्स में भी यही है, राइट. सो यूजुअली हम EC50 से ही कंपेयर करते हैं, है ना. सो इट इज द क्वांटिटी ऑफ द ड्रग दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड रिस्पॉन्स. सो किसकी पोटेंसी अच्छी है? लेस डोज इज रिक्वायर्ड फॉर ड्रग एक्स टू प्रोड्यूस द 50% of the response as compared to drug Y. समझ में आया सबको? Here we are, see, you required more dose of the drug Y to produce the same response like drug X, है ना. अभी नीचे देखो, efficacy. Efficacy means maximum effect of drug. यहाँ पे भी देखो, ड्रग Y, ड्रग X, इफेक्ट किसका ज्यादा आया? ड्रग X का. भले ही ज्यादा डोज दिया, है ना, भले ही ज्यादा डोज दिया, तो भी क्या हुआ, ड्रग एक्स का रिस्पॉन्स ज्यादा आया एज कंपेयर टू ड्रग वाई. ड्रग वाई का इसी 50 तक भी नहीं, मतलब 50% रिस्पॉन्स भी नहीं पहुंचा, राइट. सो यहाँ पे हम बोलेंगे ड्रग एक्स इज मोर एफिकेशियस देन ड्रग वाई बिकॉज ड्रग एक्स इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग nearly 100% response as compared to drug Y. इसका तो 50% रिस्पॉन्स भी इतना अचीव नहीं होता है जितना कि ड्रग एक्स का है ना. सो ड्रग एक्स इज मोर एफिकेशियस एज कंपेयर टू ड्रग वाई. यहाँ पे देखो द सेम वन, है ना. यहाँ पे हमने ड्रग लिया है मॉर्फिन इज कंपेयर्ड विथ एस्पिरिन. Both the drugs are analgesic drug, pain relieving drugs. Morphine is from opioid group, aspirin is from non-steroidal anti-inflammatory drugs group. Both are relieving pain. Okay, but morphine देखो,
है ना. डोज कितना है यहाँ पे 10 मिलीग्राम है ना. 10 मिलीग्राम पे इसी 40% रिस्पॉन्स आया. जबकि आपने 1300 मिलीग्राम डोज दिया एस्पिरिन का तो भी उसका रिस्पॉन्स आया अप टू 20%. मतलब क्यूमुलेटिव यहाँ पे क्यूमुलेटिव दिया है ना. मतलब क्यूमुलेटिव रिस्पॉन्स दिया है, परसेंटेज ऑफ पेशेंट दिए. तो इतना फायदा नहीं हुआ. सो मॉर्फिन is more efficacious as compared to aspirin for producing pain relief. बट ये भी अलग बात है. अगर आप बोलोगे ये है efficacy and potency, morphine is more efficacious, morphine is more potent. बट अगर आप देखोगे एडवर्स इफेक्ट के हिसाब से तो मॉर्फिन हम नहीं देंगे, है ना. बट दीज आर ऑल रिलेटिव थिंग्स. ओनली कॉन्सेप्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके. So efficacy is the maximum response produced by a drug, and it depends on the number of drug receptor complex formed. Potency is measure of how much drug is required to elicit a desired response or given response. Potency usually dose में जाता है, lower the dose और effect आता है. In clinical, you can say in therapeutics or in clinical applications, what is more important is efficacy. We want maximum effect. हाँ, कभी कभार डोज देखा जाता है 5 ग्राम डोज इज मोर, बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 5 मिलीग्राम, है ना. बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर ऑब्जर्विंग एफिकेसी, है ना. सो इफ ड्रग इज मोर एफिकेसियस वी आर सिलेक्टिंग दैट ड्रग, चाहे कितना भी डोज देना पड़े, बट इफेक्ट अगर ज्यादा आता है then it is very good, है ना. सो we'll considering the effect. मैंने बोला था ना पहले ही कि we want maximum benefit, maximum effect with minimal adverse effect, right? So with this graded dose response curve, we have observed EC50, efficacy, potency. Another terminology is therapeutic efficacy. मतलब degree of benefit or relief from the symptoms or illness by using the particular drug within the therapeutic range. Remember, within the therapeutic range. But again, it depends on lot many factors. Majorly, it depends on potency, of course, depends on efficacy, depends on pharmacokinetics of that particular drug and pathophysiological variables. वो जब भी आप इंडिविजुअल ड्रग्स पढ़ोगे तब आपको कंपैरिजन में आएगा, तो आप देखना. But this is the terminology that you need to understand. Another important thing is slope of dose response curve. Again, the responses fall in the blood pressure on the y-axis. We have given the dose on the x-axis, and we have plotted the graph for two drugs. One is thiazide group of drug, another is hydralazine group of drug. What we want? We want reduction in the blood pressure. So hydralazine का ये just मैंने example दिया है ना. Hydralazine is also used in hypertension. Thiazide, hydrochlorothiazide, we are using in hypertension. Both are reducing the blood pressure. But आप उसका slope देखो. Hydralazine steep rise है ना. उसका response बहुत जल्दी आता है with the less doses. डोज थोड़ा भी बड़ा होगा ब्लड प्रेशर और ज्यादा फॉल होगा. जबकि थायराइड आपने ज्यादा डोज दिया तो भी फॉल इन द ब्लड प्रेशर इतना नहीं हुआ जितना कि हाइड्रालेजिन था. सो इज देयर एनी सिग्निफिकेंस, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस? यस. With the steep dose response curve, moderate increase in the dose lead to more increase in the response.
but that is often unwanted and uncommon. Flat dose response curve, moderate increase in the dose lead to little increase in the response. But that the flat dose response curve, dose needs no individualization for different patients. जबकि स्टीप डोज रिस्पांस कर्व है, आपको थोड़ा डोज इंक्रीज करने के लिए आपको वॉच रखना पड़ेगा पेशेंट, उसका बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, है ना, विथ हाइड्रोलाइसिन. सो इट इज अनवांटेड एंड अनकॉमन, है ना. जब फ्लैट डोज रिस्पांस कर्व, इट इज डिजायर्ड एंड कॉमन मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना. बट आपको अगर इमरजेंसी है, आपको ब्लड प्रेशर डाउन करना है, देन वन कैन think of that, because you are patient is under observation with the doctor consultant and you are taking all the precautions. That is good. But this is the concept of steep dose response curve and flat dose response curve, है ना. The concept you need to understand. और डिटेल आप फिर आगे जब भी ड्रग्स पढ़ोगे तब आएगा. But this you learn at this juncture, you need to learn the concepts. Okay, so that is all about the graded dose response curve. Now coming to the contour dose response curve. See, some of the responses we can measure on a continuous scale, है ना. जैसे कि हमने देखा कि स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शंस करना है तो कंटिन्यूएशन में आएगा कि ब्लड प्रेशर इतना mm ऑफ Hg रेज हुआ या कम हुआ, 10, 20, 30, ओके, लाइक दैट. बट मान लो कि आपको टॉक्सिसिटी स्टडी करना है ना, डेथ ऑफ अ पर्सन, डेथ ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल एनिमल, है ना. तो that can be consider the variability among the patients in severity of the disease and responsiveness to the drug. We can take suppose acute toxicity study, death है या कोई toxic effect, कोई particular effect लेना है. मान लो कि 50 mm of Hg rise in the blood pressure, इतना होना चाहिए response, या 50% increase in the heart rate. तो आप जाके ऑल और नन हुआ या नहीं हुआ, इतना इफेक्ट हमको मिला या नहीं मिला. डायजेपाम देंगे तो उसको नींद आई कि नहीं आई. एनेस्थेटिक एजेंट दिया, एनेस्थेशिया प्रोड्यूस हुआ या नहीं हुआ. दैट रिक्वायर्स ऑल और नन, दैट इज ऑल और नन, है ना. सो डेथ और नो डेथ, एनेस्थेशिया और नो एनेस्थेशिया, है ना. 50% rise, particular 50% rise in heart rate, या 50 millimeter of mercury rise in blood pressure, there or not. For that purpose, here in the contour dose response curve, we are fixing or keeping the response constant, है ना. So here we can measure the effect in large number of individual patients at various doses. We are keeping here the response constant. Particular response लेके हम बात करेंगे यहाँ पे, है ना. Particular fix हमने रखा, constant रखा, particular response, death या no death, 50% rise in heart rate or not, in individual, in the person, in the subjects with different doses. 3 चीजें तो आई, रिस्पॉन्स आया, सब्जेक्ट आए, डोजेज आए, लेकिन यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स को फिक्स रखा. सो बेसिकली इट मेजर्स एंड कंपेयर्स द पोटेंसी ऑफ ड्रग्स, राइट. सो देखो यहाँ पे ग्राफ ए एंड ग्राफ बी क्या दिखाया है, concentration versus percentage of individual responding. So contour dose response curve, it is the percentage of total number of respondents
2 different doses of the drug for particular effect. पर्टिकुलर इफेक्ट चाहे कुछ भी हो, मैंने आपको बताया ना, एनेस्थेशिया या हिप्नोसिस हुआ कि नहीं, डेथ या नो डेथ, है ना। तो हम डिफरेंट ड्रग्स लेंगे। यहाँ पे ए ग्राफ में देखो, नीचे वाला देखो पर्पल वन, है ना। कॉन्सेंट्रेशन वी आर गिविंग डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन एंड वी आर प्लॉटिंग हाउ मच परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स आर रेस्पॉन्डिंग टू दीज डोजेस, है ना। कुछ कुछ होंगे वो कम डोज में भी उसका रिस्पॉन्स नहीं आता है ना। कुछ का इतने डोज में भी इतने परसेंट, मतलब वही रिस्पॉन्स कम डोज में आएगा, किसका 10 में सेम रिस्पॉन्स आएगा, किसी का 20 डोज में भी आएगा, है ना। सो इंडिविजुअल, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। लेकिन अगेन हम चाहेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज इजी फॉर कंपैरिजन, है ना। क्यूमुलेटिव लिया कि भाई इतना है 20% रेस्पॉन्ड, 40% कितने इंक्लूडिंग 20 वाले, है ना। लाइक दैट वी हैव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, है ना। ये सब आपने 8, 9, 10th में पढ़ा है, आप फिर से रिवाइज करना। सो इट इज फार्माकोलॉजी इज आल्सो लिटिल बिट ऑफ मैथमेटिक्स। जिसको इंटरेस्ट है उसको ये अच्छा लगेगा। See in the graph B, what we have seen here, hypnosis and death. एक रिस्पॉन्स है हिप्नोसिस, एक रिस्पॉन्स है डेथ, कोई एक ड्रग का। What we have seen, percentage of individuals responding. मान लो कि आपने 50 इंडिविजुअल्स लिए, तो 50 के 50 का रिस्पॉन्स आया, तो यहाँ पे यहाँ तक आया, है ना। वी हैव गिवन हियर द डोज, डिफरेंट डोजेस, अगेन क्यूमुलेटिव, है ना। ये क्यूमुलेटिव हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमने प्लॉट किया। अगेन वी हैव टू सी ED50, LD50। देखो ED50 is the dose that provides a particular response, है ना। हमने क्या चाहा, हिप्नोसिस चाहा यहाँ पे, या हमने एनिमल्स में डेथ चाहा, है ना। डेथ कितने को हो रहा है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिस्पॉन्स। सो ED50 means, ED50 first we are talking about ED50 is the dose that provide a particular response in 50% of the subject. कौन सा रिस्पॉन्स, जो हमने चाहा, यहाँ पे हिप्नोसिस। LD50 यूजुअली वी आर डूइंग इन टॉक्सिसिटी स्टडीज, और देखना पड़ता है ना। खास करके हम एफिकेसी एंड टॉक्सिक इफेक्ट, थेरापेटिक इफेक्ट एंड टॉक्सिक इफेक्ट दोनों देखते हैं, तभी तो जाके ड्रग का डोज रेंज डिसाइड होता है। सो इन द टॉक्सिसिटी स्टडीज वी आर टेकिंग LD50, that is dose that provides the lethality in 50% of the subject, that is LD50. So you can see for one particular drug we have seen the hypnosis, for that particular drug only we have seen the toxic effect, that is death, we have observed, है ना। तो यहाँ पे क्या है, therapeutic index of that drug is LD50 upon ED50. So यहाँ पे राउंड अबाउट हमने लिया, देखो LD50 कितना है 400 एंड ED50 है 100 is equal to 4. So 4 उसका इतना मतलब नहीं रहेगा, अगर 1 आता है और 1 से लेस है तो बहुत डेंजर, क्योंकि वो क्या है, काफी करीब है। अब आप कंपेयर करो, सपोजेटली ये डेथ यहाँ पे दूर चला गया, हिप्नोसिस के करीब आता तो दैट मीन्स बहुत कम डोज में, जो मैंने आपको पहले दिखाया ना इनिशियल उसमें, वो आएगा तो वो वहां पे डेथ बहुत नजदीक आ जाएगा, मतलब विद स्लाइट इंक्रीज इन द डोज यू विल गेट डेथ इंस्टेड ऑफ हिप्नोसिस, मतलब हिप्नोसिस के बहुत करीब डेथ भी आ जाएगा। सो थेराप्यूटिक इंडेक्स
is LD50 upon ED50, lethal dose in 50% of the population upon effective dose in 50% of population. So इसका significance है, yes, it decides the safety of the drug. मैंने बोला ना, यहाँ पे एग्जाम्पल करके लिखा है, देखो नीचे थर्ड में, थियोफाइलिन is having, theophylline we are using for bronchial asthma. It is having narrow therapeutic index. लेकिन कैसे बोलेंगे हम? Average minimal plasma concentration for producing the effect we are having 80 milligram per liter. It requires 8 milligram per liter. Whereas for toxic effects 80 milligram per liter. So इसका dose range है 8 to 18 milligram per liter. So this is the therapeutic window for the theophylline. So it is the dosage range between minimal effective therapeutic concentration or the dose and the maximum toxic concentration of the dose. Effective concentration versus toxic concentration. देखो हम ह्यूमन स्टडीज करने जाएंगे तो हम डेथ तो ऑब्जर्व नहीं करेंगे ना, किसी को मार तो नहीं डालेंगे ना, हम एनिमल्स को मारते हैं लेकिन ह्यूमन बींग्स को नहीं मारेंगे, तो हम क्या लेते हैं? टॉक्सिक इफेक्ट्स, है ना, यहाँ पे देखो, है ना. In short, it decides, therapeutic index decides the safety of the drug. Adverse effects अगर बहुत नजदीक आ गया, है ना, लेफ्ट शिफ्ट हुआ therapeutic response के साथ, that means narrow therapeutic index drug, right? So drug with a low therapeutic index should be used with caution and needs periodic monitoring. क्योंकि आप उसको थोड़ा भी डोज इंक्रीज करोगे आपकी टॉक्सिक इफेक्ट आएगी. मैंने साल्ब्यूटामोल और आइसोप्रिनालिन का बोला था, है ना. सो लो थेरापेटिक इंडेक्स ड्रग शुड बी मॉनिटर्ड. लाइक वारफारिन एंटीकोएगुलेंट ड्रग है, ओरल एंटीकोएगुलेंट ड्रग है ना. वो थोड़ा भी डोज बढ़ाओगे उसका टॉक्सिक इफेक्ट बढ़ जाएगा, ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी. यू नीड टू बी वॉचफुल देयर. डिगॉक्सिन वी आर यूजिंग फॉर हार्ट फेलर, अरिथमिया होता जाएगा, हार्ट फेलर, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, that we want, that effect we want, but at the same time it also capable to produce arrhythmias. So short increase in the dose, digoxin will produce arrhythmias. So they are low therapeutic index drug. Clear? Similarly, paracetamol, ibuprofen, diclofenac, penicillins that we are taking routinely, they are having large therapeutic index drug. They are having large therapeutic index and they can be used relatively safely. क्योंकि कोई हाई डोज भी लेगा ना आपके ऑब्जर्वेशन नहीं ऑब्जर्व करने के बावजूद भी, then it will not cause any problem. इतना एडवर्स इफेक्ट नहीं बढ़ेगा जितना कि टॉक्सिक डोज लेगा, राइट, जितना कि वारफारिन डिगॉक्सिन का आया. सो वी आर कंसिडरिंग देम एज सेफर ड्रग्स, है ना. So other terminology है wide safety margin, narrow safety margin. Low therapeutic index drugs, large therapeutic index drugs. Okay. So this is the clinical significance of measuring. Another thing is combined effect of drugs. ये बहुत important है. देते हैं ना, most of the time we are taking so many drugs at a time, more than one drug at a time. So when मान लो के 2 drugs are given at a time, given together, what are the consequences? Nothing will happen, है ना. मतलब जो इंडिविजुअल ड्रग्स है उसका इफेक्ट आएगा बट कुछ अलग, इनडिफरेंट टू ईच अदर, इफेक्ट इतना नहीं. लेकिन एक्शन या तो फिर क्या होगा, एक्शन ऑफ वन ड्रग इज फैसिलिटेटेड बाय द अदर, सिनर्जिज्म होगा, या एक्शन ऑफ वन ड्रग में डिक्रीज और इनहिबिट बाय एक्शन ऑफ अदर ड्रग, दैट इज एंटागोनिज्म. या तो कुछ नहीं चेंज होगा दोनों ड्रग के इफेक्ट में, या तो एक ड्रग दूसरे को
फैसिलिटेट करेगी एक्शन में, या मतलब एक्शन बढ़ेगा या कोई इनहिबिट करेगा? क्लिनिकली रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, यस। लेट्स सी। ड्रग सिनर्जिज्म मींस एडिटिव इफेक्ट और समेशन। इसका मतलब है ड्रग ए, effect of drug A plus effect of drug B is equal to effect of drug A and B. Simple summation. 1 plus 1 is equal to 2. Simply one need to add up. Codeine plus paracetamol. I have used this short name, paracetamol. Codeine plus paracetamol. Both are analgesic, but they are facilitating analgesia. So good analgesia you will get. Another drug, antihypertensive drug, is amlodipine. It is calcium channel blocker. Another one is beta blocker, that is atenolol. We are using for hypertension. But they are 1 plus 1 is equal to 2. तो ये क्या है? Addition, summation है, and that is good. It is, one can use this combination. Similarly, for diabetes type 2, we are using glipizide, sulfonylurea group, and biguanide, that is metformin drug, and they are facilitating. है ना? So they are simply having additive effect. 1 plus 1 is equal to 2. Here you need to understand the concept. 1 or 2 example you need to remember, right? So this is drug synergism. लेकिन और टर्म है, सुप्रा एडिटिव इफेक्ट. क्या है? ड्रग पोटेंशिएशन. Here the effect of combination of these two drugs are more than the individual effect of the drugs. 1 plus 1 is equal to 5. 0 plus 1 is equal to 5. ऐसा. Classical example I can give you is the levodopa and carbidopa drug for Parkinsonism. All of you are knowing what is Parkinsonism. It is a neurodegenerative where relative dopamine deficiency is there at the amygdala, at the substantia nigra. Patient को tremor है, kinesia है ना, rigidity, levodopa. Levodopa इतना reach नहीं करता है center में, because we want action where we are having dopamine receptors in the periphery. GI tract में भी है, vomiting center पे भी है, periphery में है, या we are also having there in the central nervous system, brain में भी है, substantia nigra में भी है, but we want action at the substantia nigra. तो levodopa हम देते हैं, तो hardly 1% is reaching to the brain. क्यों? कि this levodopa is get peripheral, जब भी circulation में होगा, it is get converted to dopamine immediately. तो डोपामीन का एडवर्स इफेक्ट ज्यादा आएगा, वो पेरिफेरी में ही एडवर्स इफेक्ट आएगा, उसका सेंट्रल में इफेक्ट नहीं आएगा. सो वी आर गिविंग कार्बिडोपा. कार्बिडोपा इज बिकॉज levodopa is get metabolized by dopamine decarboxylase enzyme at the periphery. Carbidopa is dopamine decarboxylase inhibitor, है ना? तो क्या करेगा वो? पेरिफेरी में ही, कार्बिडोपा सेंटर में नहीं क्रॉस करता है, तो पेरिफेरी में ही वो क्या करेगा? levodopa का मेटाबॉलिज्म इनहिबिट करेगा. Because carbidopa is bind with this enzyme, so levodopa will escape and it will more reach to the to the central nervous system. उधर substantia nigra में पहुंचेगा. So मेरा कहने का मतलब है levodopa की इफेक्ट है 1 प्लस कार्बिडोपा. ऐसे तो कोई as such एंटी पार्किंसनियन इफेक्ट नहीं है, तो हम 0 बोलेंगे, बट उसका इफेक्ट क्या आया? बहुत ज्यादा, मोर देन 5. सो levodopa का डोज कम देना पड़ेगा, उसका एडवर्स इफेक्ट्स कम होगा, है ना? तो ये फायदा है. दिस इज द रैशनल कॉम्बिनेशन. सो व्हेनेवर वी आर कंबाइनिंग द ड्रग, वी हैव टू सी वेदर इट इज अ बेनिफिशियल इफेक्ट और द हार्मफुल इफेक्ट. उसका एडवर्स इफेक्ट भी कम होगा.
Similarly, for bacterial infection, we are combining sulfamethoxazole and trimethoprim. है ना? वो बैक्टीरिया, बोथ आर बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग, ग्रोथ इनहिबिट करेगा, किल नहीं करेगा बैक्टीरिया को, लेकिन आप कंबाइन करोगे तो वो किल करेगा। और उसका मैकेनिज्म भी क्या है, वो फॉलिक एसिड सिंथेसिस में सेम सीक्वेंस में इनहिबिट करता है, तो उसका इफेक्ट बढ़ जाएगा। इंस्टेड ऑफ ओनली ग्राम पॉजिटिव और फ्यूअर ऑर्गेनिजम्स, दे आर एक्टिंग ऑन मोर स्पेक्ट्रम. So supra additive effect means effect of combination is greater than the individual effects component. 1 plus 1 is equal to more than 1 or more than 2, not only 2. Okay, so this is supradditive drug potentiation. Antagonism हमने देखा, beneficial or synergism, potentiation. Now antagonism. Antagonism we have already discussed. ये सब हमने बोला ना, रिसेप्टर एंड नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म्स, उसमें कुछ कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे. सिमिलरली हियर आल्सो एंटागोनिज्म ही हो रहा है ना. फिजिकल एंटागोनिज्म बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, वो यहाँ पे अप्लाई करो. दिस इज गुड, बेनिफिशियल वन, है ना. एक्टिवेटेड चारकोल इफ वी विल यूज, देन it will absorb alkaloids and prevent their absorption. So alkaloid poisoning होता है तो हम चारकोल देते हैं, है ना. So they will add, that is physical. This is one example of physical antagonism. Chemical antagonism, that is based on chemical properties. Antagonism हो रहा है यहाँ पे. मैंने बोला था chelating agents, है ना, used in heavy metal poisoning, chelating agents. We are using iron poisoning में desferrioxamine, है ना. हिपेरिन एंटीकोगुलेंट, बहुत सारा कोविड में यूज हुआ ना, हिपेरिन एज एन एंटीकोगुलेंट. तो बहुत ज्यादा होता है हिपेरिन, टॉक्सिसिटी होता है, वी नीड टू गिव प्रोटामीन. इट इज एन एंटीडोट फॉर हिपेरिन. ओके, दीज आर गुड, यू कैन से बेनिफिशियल एंटागोनिज्म, है ना. वी आर यूटिलाइजिंग देम इन क्लिनिकल प्रैक्टिस. हाइपर एसिडिटी हुआ, HCl बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, जो हमको रूटीन लाइफ में डिस्टर्ब करता है. HCl बढ़ेगा स्टमक में, कोई बात नहीं, बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो दिस इज यू कैन से हैविंग मल्टीपल फंक्शंस, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस. बट अगर बहुत ज्यादा HCl प्रोड्यूस हुआ, हार्ट बर्न करेगा, आपको इरिटेशन करेगा, वॉमिटिंग करेगा, तो यू नीड टू गिव एंटासिड्स, है ना. सो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. केमिकल एंटागोनिज्म, these are beneficial one. वो ब्लैक में दिखा है ना, वो बेनिफिशियल. नीचे देखो, थायोपेंटाइल सोडियम एंड सक्सिनाइल कोलिन. Thiopenton is an anesthetic agent. Succinyl choline, it is a skeletal muscle relaxant. During anesthesia, you need adequate skeletal muscle relaxation. And for that purpose, we are giving succinyl choline. But if you combine this thiopenton and succinyl choline in one syringe, there will be chemical precipitation, chemical antagonism, and drug become inactive. कोई मतलब नहीं है फिर देने का. It should not be combined, है ना. हिपेरिन और टेट्रासाइक्लिन को हम नहीं देंगे साथ में. Similarly, these are non-beneficial combinations. Antagonism हो रहा है, लेकिन clinically useful नहीं है. This is chemical antagonism. Physiological antagonism. See, these all terminology you need to remember. Physiological antagonism means two drugs act on different receptors or by different mechanisms, but have the opposite effect. कहाँ पे? On the same physiological system or on the same function, physiological function. यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल सेट किया है. यहाँ पे एक फिजियोलॉजिकल, हमने एक टिश्यू लिया, ब्रोंकियल स्मूथ मसल. वास्कुलर स्मूथ मसल जो ब्लड प्रेशर कराता है ना, ब्लड प्रेशर के रिलेटेड है.
वाजोकंस्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, वाजोडाइलेटेशन होगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा, ऐसे। ब्रोंकियल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होगा, ब्रीथलेसनेस होगा, डायलेटेशन होगा तो ब्रीथलेसनेस से रिलीफ होगा। सो यहाँ पे दो एग्जांपल है, वन इज एड्रेनालिन, अनदर इज हिस्टामिन। मान लो कि आप कहीं घूमने जा रहे हो, जंगल में हो, और मधुमक्खी अक्सर काटती है ना, किसी को भी काटी भी होगी, इंसेक्ट बाइट। तो क्या होता है, सपोजेटली इंसेक्ट बाइट होता है तो क्या होता है, कोई एक इंसेक्ट बाइट करता है, हाथ पे होता है, तो वहां पे वाजो इमीडिएट वाजोडाइलेटेशन होगा। इंसेक्ट मतलब क्यों होगा, हिस्टामिन रिलीज होता है, लोकली होगा। लेकिन बहुत ज्यादा मधुमक्खी काटी तो ब्लड में भी आ जाएगा हिस्टामिन। सो हिस्टामिन इज गेट रिलीज्ड इन द ब्लड causing vasodilatation and bronchoconstriction, है ना। ब्रोंकियल स्मूथ मसल में जाएगा, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करेगा, है ना। हिस्टामिन बहुत सारा इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज करेगा, so it is causing vasodilatation, मतलब ब्लड प्रेशर रिड्यूस करेगा और ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करेगा। बट एड्रेनालिन, it is acting on alpha and beta receptors. Histamine is acting on the histamine receptor. H1, H2, H3 होते हैं, H5 तक होते हैं, लेकिन H1 रिसेप्टर याद रखो। Adrenaline is acts on alpha and beta receptors. Both are acting on different receptors, but adrenaline is causing vasoconstriction and bronchodilation. इंसेक्ट बाइट हुआ, बहुत सारा हिस्टामिन रिलीज हो गया ब्लड में, जो नहीं आना चाहिए था। दैट विल रिड्यूस द ब्लड प्रेशर, कॉजिंग शॉक। पेशेंट में गो इन द शॉक, ब्लड प्रेशर फॉल होगा, पेशेंट को ब्रीथलेसनेस होगा। तो क्या है, सेम फिजियोलॉजिकल सिस्टम, एड्रेनालिन दिया, एक्ट्स ऑन द डिफरेंट रिसेप्टर, एक्ट्स बाय डिफरेंट रिसेप्टर बट ऑन द सेम फिजियोलॉजिकल सिस्टम। ब्लड में कराएगा वाजोकंस्ट्रिक्शन, तो ब्लड प्रेशर रेज करेगा। सेम फिजियोलॉजिकल सिस्टम, ब्रोंकियल स्मूथ मसल है, सो लंग में ब्रोंकोडाइलेटेशन करेगा, रिलीफ फ्रॉम द ब्रीथलेसनेस। इसीलिए हम बोलते हैं एड्रेनालिन इज a drug of choice in anaphylactic shock. This is the concept, but this is physiological antagonism. I'm sorry. So two drugs acting on the same physiological function of the system, but producing opposite effect. Right? This is physiological antagonism. Similarly, CNS stimulants and CNS depressants. Pharmacokinetic antagonism. We are more interested here also. Pharmacokinetic antagonism means effect of one drug is reduced by pharmacokinetic property of other drugs. Means ये भी कॉन्सेप्ट आपने फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ा है, एक्सक्रीशन में। Urinary alkalinizers we are using in weak acidic drug poisoning, aspirin and barbiturate like drug, है ना। वो याद करना, है ना, यही कॉन्सेप्ट आप फिर से पढ़ लेना। That is at the excretion part. Weak acidic drugs are better absorbed in the weak acidic medium like that. Alkalinizer देंगे तो वहां पे वो absorb नहीं होगा और excrete हो जाएगा aspirin and barbiturate. This is the concept of pharmacokinetic antagonism. This is useful one, है ना। We are utilizing these property in clinical application. ये हम फायदा उठा रहे हैं। हमको पता है कि ये एस्पिरिन एंड बार्बिचुरेट पॉइजनिंग हुआ तो यूरिनरी अल्कलिनाइजर देंगे तो उसको एस्पिरिन एंड बार्बिचुरेट वो एक्सक्रीट हो जाएगा। सो हम इसका फायदा उठाते हैं। सो दिस इज अ बेनिफिशियल फार्माकोकाइनेटिक एंटागोनिज्म। बट नीचे एक एग्जांपल दिया है, फेनिटोइन और रिफाम्पिसिन विथ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। मेटाबॉलिज्म पार्ट आपने पढ़ा। If someone is having
सफरिंग फ्रॉम है, रिफाम्पिसिन ले रहा है ना, सपोज लेडी है, या वही लेडी है जो एपिलेप्सी से, मतलब एपिलेप्टिक फिट आ रहे हैं और फेनिटोइन उसको दे रहे हैं डॉक्टर्स, उसकी नई नई शादी हुई है, आप उसको हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव ही देते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन। तो क्या होगा, पेशेंट क्रोनिकली फेनिटोइन रिफाम्पिसिन ले रहा है, तो दैट विल इंड्यूस द एंजाइम, माइक्रोसोमल एंजाइम्स। कौन से माइक्रोसोमल एंजाइम्स? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन को जो मेटाबोलाइज करते हैं वो। तो क्या होगा, नाउ यू आर गिविंग estrogen and progesterone. So patient is already on phenytoin and rifampicin. You are giving hormonal contraceptive. You will not get the desired effect of hormonal contraception. So contraceptive effect नहीं आएगा, क्यों? कि estrogen बहुत जल्दी मेटाबोलाइज हो जाएगा, तो आपको जो उसका इफेक्ट चाहिए estrogen का वो नहीं मिलेगा. Okay, this is a, you can say this example you need to remember as a, some drugs should not be given along with this, like that. Okay, so hormonal contraception agar dete hai, one should not be on antitubercular drug rifampicin, or one should not be having a phenytoin previous jo le rahe hain usme nahi hona chahiye. So these are the examples you need to remember. I think I am stopping here, time ho gaya hai bahut zyada. These things अभी और जो आना था रिसेप्टर एंटागोनिज्म वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, along with the factors modifying drug action, उसमें भी ये भी आता है. Okay, so we'll take and we'll continue with the receptor antagonism tomorrow. Okay, so up till now what you have seen, what we have covered, graded dose response curve and counter dose response curve, उसका concept पढ़ा, EC50, TD50, therapeutic index पढ़ा, है ना, उसको रिलेटिवली हमने उसको कंपेयर किया, so therapeutic index आया, relative efficacy, relative potency आया. Okay, therapeutic window margin हमने देखा, how we are measuring the effect of drugs, and combination करते हैं तो क्या होगा, addition and antagonism. Agonism मतलब facilitation synergism होगा, potentiation होगा, या drug antagonism. मतलब drug antagonism आपको ये सारे लिखने पड़ेंगे, physical antagonism या physiological antagonism, pharmacokinetic, chemical antagonism and receptor antagonism, है ना, हम आगे कल पढ़ेंगे. Any question related to this? You can write in the chat. Have you understood the topic today? सब सो गए क्या? ओके, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ क्वेश्चंस है? Again go and read these things. ऐसा मत मानना कि ये फार्माकोकाइनेटिक एंड डायनेमिक डिफरेंट है, वो इंटर रिलेटेड आ जाएगा. जब भी आप इंडिविजुअल ड्रग्स पढ़ोगे आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा, बट हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग द बुक्स. कोई भी बुक आप पढ़ो लेकिन उसको समझना, है ना, टॉपिक को समझना और डिटेल पढ़ना, बिकॉज लॉट मेनी थिंग्स आर देयर. ओके, समझ में नहीं आए तो बाद में भी आप पूछ सकते हो. सो थैंक यू एवरीवन, आई एम स्टॉपिंग हियर, विल कंटिन्यू tomorrow. Okay, so thank you everyone. Thank you.